احباب جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر اپنے اپنی کرسیوں پر تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہمارا یہ پروگرام پورے آب و تاب کے ساتھ شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں تمام ہی لوگوں سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ وہ بھی جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ مولانا اعجاز صاحب قاسمی سے بھی میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ قرآن مجید کی نسبت سے منعقد ہونے والا ہمارا یہ پروگرام ہے۔ دو طلبہ کرام الحمدللہ اساتذہ کرام کی محنتوں سے اور انتظامی کمیٹی کی فکروں سے حافظ قرآن اس سال بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان کے والدین کو اور ان کے اساتذہ کو سب کو قبول فرمائے۔ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مولانا ماجد خان صاحب قاسمی سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ صاحب سے بھی خواہش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ امام و خطیب ٹیک کی مسجد آمور سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اسٹیج پر۔ بھئی جو احباب باہر ہیں اور اپنی تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے، کھانے سے بھی فارغ ہو گئے اور نماز اور سنت و نوافل سے بھی فارغ ہو چکے ہیں، ان سے میں ادب اور اس سے پہلے انشاءاللہ ہمارے ضلع نظام آباد کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا مفتی سعید اکبر صاحب امام و خطیب جامع مسجد نظام آباد، حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مولانا کا بھی بصیرت افروز خطاب عالم دین ہمارے اس مدرسہ شیخ العلوم بالکنڈہ کے جو گزشتہ ایک سال سے سرپرستی فرما رہے ہیں، حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب صدر جمعیت علماء ضلع نظام آباد، امام و خطیب مکہ مسجد اور ناظم مدرسہ مظہر العلوم حضرت مولانا بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی خطاب ہوگا۔ میں تمام ہی احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں، بالکنڈہ شہر کے جو ذمہ داران الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں، آج کے اس عظیم الشان جلسہ دستاربندی و تکمیل حفظ قرآن زیر اہتمام مدرسہ شیخ العلوم بالکنڈہ میں تشریف لانے والے تمام ہی گرامی قدر مہمانان عالی وقار اور اسٹیج پر تشریف فرما بزرگ شخصیت جناب قاضی حسن محی الدین صاحب، دور دراز سے آنے والے مہمانان حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا ہزار بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کائنات نے اپنے قرآن اور اپنے کلام کی نسبت سے ہم سب کو یہاں پر مل بیٹھنے اور جو طلبہ حافظ قرآن بنے ہیں ان کی ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جمع فرمایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے دوستو کہ قرآن کی نسبت سے ہم لوگ یہاں پر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یقیناً قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس کلام اور وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت اور جس کا تقدس دنیا کی ہر کتاب سے بڑھ کر اور افضل ہے۔
قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کو، پڑھانے والوں کو، سننے والوں کو، یہاں تک کہ قرآن مجید کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنے والوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت اور سعادت مقدر فرما دی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس چہار دیواری کے اندر، جس مدرسوں کے اندر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، جہاں صبح آنکھ کھلنے سے لے کر کے شام میں آنکھ کے بند ہونے تک اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، قرآن مجید کا ورد اور قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، یہ عمل جاری رہتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں نازل فرماتی ہیں۔ یقیناً ہمارا یہاں بیٹھنا اور آپس میں ان مدارس کا تعاون کرنا اور ان کے معاون بن کر مدارس کو پھلنے اور پھولنے کے مواقع فراہم کرنا، یہ ہماری اپنے مال کی قبولیت کی علامت اور ہماری خدمتوں کی قبولیت کی یقیناً علامت ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن مجید سے دور ہیں اور قرآن مجید کی برکتوں سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی نسبت پر یہاں پر جوڑا ہے، ہمیں اس لمحے کی اور ان اوقات کی قدر کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کے حوالے سے جو باتیں یہاں پر ذکر کی جائیں، علماء کرام کے قیمتی جو بیانات یہاں پر ہم سنیں، ہمارے دلوں کے اندر یہ عزم اور ارادہ اور نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے میں ہمارے عظیم الشان روحانی اجلاس کا باضابطہ طور پر آغاز کرنے کے لیے اسی مدرسہ اشرف العلوم بالکنڈہ کے ایک ہونہار طالب علم محمد ناصر سلمہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت باسعادت سے ہمارے اس اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ محمد ناصر سلمہ۔
ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں، جب کہ آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا، جب کہ آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا، اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا، اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا۔ راج حسن نبی پردہ پردہ پڑا، یعنی اللہ نے کچھ بتایا نہ تھا، عرش پر آپ کا نور تھا جلوگر، عرش پر آپ کا نور تھا جلوگر، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں، نام اتنا پرانا کسی کا نہیں۔ ذکر عیسیٰ بھی ہے، ذکر موسیٰ بھی ہے، ذکر عیسیٰ بھی ہے، ذکر موسیٰ بھی ہے، نوح بھی آئی ہے، شیت بھی آئے ہیں، نوح بھی آئے ہیں، شیت بھی آئے ہیں، اور نبیوں کے بھی تذکرے ہیں یہاں، پرچم نور ان کے بھی لہرائے ہیں، دیکھیے مرتبہ مجتبیٰ کے سوا، دیکھیے مرتبہ مجتبیٰ کے سوا، عرش پر آنا جانا کسی کا نہیں، عرش پر آنا جانا کسی کا نہیں، صرف اللہ اللہ تھا جس جگہ، مصطفیٰ اس جگہ پر بلائے گئے، مصطفیٰ اس جگہ پر بلائے گئے، رات کو پر ستارے بچھائے گئے، فام عرش بری کے سجائے گئے، رب کی فہرست میں، رب کی فہرست میں نام ایسے کہ لو لمکا میں ٹھکانا کسی کا نہیں، لمکا میں ٹھکانا کسی کا نہیں، ریت کی آگ میں تن جلایا گیا، ریت کی آگ میں تن جلایا گیا، پھر بھی چھوٹا نہیں دامن مصطفیٰ، پھر بھی چھوٹا نہیں دامن مصطفیٰ، آپ شمس و ضحیٰ، آپ بدر و دجا، نام ایسا پرانا کسی کا نہیں۔ زمزم و کوثر تسنیم لکھ سکتا، زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں ابھی ہم اور آپ قاری محمد انعام الحق صلی اللہ علیہ وسلم سے نعت نبی سن رہے تھے۔ یقیناً دوستو مدرسے کے اندر جو کارگزاریاں ہوتی ہیں اور اساتذہ کرام اپنا خون جگر نکال کر طلباء کو مختلف قسم کی چیزیں جو امت مسلمہ کے لیے ضروری ہوتی ہیں
جیسے تحریر ہے، تقریر ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، نعت نبی کا سیکھنا اور پڑھنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اساتذہ کرام کی محنتوں سے ان طلباء کے اندر یہ صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ ہمیں مبارکباد دینا چاہیے اس مدرسے کے اساتذہ اور انتظامیہ اور طلباء سبھی کو کہ انہوں نے الحمدللہ بہت اچھی لگن اور فکر کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اور انتظام کے ساتھ مدرسے کو چلانے کی فکر اور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اندر خیر اور برکت نازل فرمائے۔ مزید ہم اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے نمونے کے طور پر چند طلباء کو پیش کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ سنیں اور ان کی تقریر کو سماعت کریں اور ان کے خطاب کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ کس محنت اور لگن کے ساتھ یہاں پر الحمدللہ پڑھائی ہو رہی ہے اور محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں۔ تو آئیے میں تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جو اسی مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم ہیں۔ الحمدللہ سال حال ہی انہوں نے یہاں پر تکمیل حفظ کیا اور آج ان کی دستار بندی بھی ہونے والی ہے۔ ان سے میری مراد حافظ محمد سمیر سلمہ ہیں، وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ حافظ محمد سمیر سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم سامعین اکرام، آج کی مجلس میں میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے اسی طرح انسان بھی یہاں پرورش پاتا ہے، اور یہ مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا رشتہ جوڑتا ہے، اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے۔ یہ مدرسے بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں، لہٰذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت دلا سکتی ہے نہ ہی کوئی ان کو توڑ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر اطراف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومت دن رات ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان اداروں کا نظام ایسے ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے تو طالب علم کو دیکھو۔ بخدا جو طالب علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے اس کو ہر قدم اور ہر ایک حرف پر 1 سال کی بات کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں شہر بنا دیا جاتا ہے، جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، صبح شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں، هؤلاء يتقى الله من النار، یہ ہے جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اس سے مراد تو ہی وہ لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب طلبہ اکرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلبہ پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں،
ان کے روپیوں اور پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو آخرت میں کتنا بڑا اجر دے گا۔ دوستوں مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے قرآن نے آ کر یہ کیا کہ جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا اور فرمایا کہ تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا۔ چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا۔ قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی، زمانے کو خیر القرون بنا دیا۔ قرآن کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا اور خاتم النبیین بنا دیا۔ بہرحال ادارہ کا مدار طالب علم اور مدرس پر ہے، تعمیر سے اونچائی نہیں آتی۔ یہ مدرسہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے، جس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کے طالب علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے تھے۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اولئک آبائی فجعونی بمثلہم، کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے؟ یہ وہی دینی ادارہ تھا جہاں جبرائیل خود طالب علم بن کر استغفار کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے ایمان اور احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو اس مرکز میں جبرائیل بھی طالب علم بن کر رہے۔ دوستو مدرسے کی قدر کرو، تم نہیں کرو گے تو خدا دوسروں کو پیدا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدرسے چلے اور چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور دعا ساتھ ہے، ادارہ نہیں مٹ سکتا، جس کا تعلق ادارے سے ہو وہ بھی نہیں مٹ سکتا۔ لہٰذا اس کی قدر کرو اور اس سے رشتہ جوڑو۔ اللہ تعالی ہمیں دینی اداروں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی مختصر الفاظ میں، مختصر انداز میں اس طالب علم نے مدارس دینیہ کی اہمیت اور ضرورت پر بہت ہی قیمتی روشنی ڈالی۔ ہم تمام کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو کہ مدارس اسلامیہ ملت اسلامیہ پر بلکہ پوری انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان عظیم اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدردانی کرنے والا بننا چاہیے۔ الحمدللہ اس سال مدرسہ اشرف العلوم بالکنڈہ کے اندر اساتذہ کرام کی توجہات اور محنتوں سے 2 طلباء نے تکمیل حفظ کیا۔ انہی کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور جن جن لوگوں نے اس پروگرام کے سجانے میں اور انتظام کے اندر تعاون کیا ہے ان تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ خواتین کے اندر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کرسیاں بہت کم ہیں وہاں پر جو بڑی عمر کی خواتین کے لیے رکھی گئی ہے، ان کو بیٹھنے کا موقع دیں، باقی تمام مائیں بہنیں نیچے تشریف رکھیں۔ اور اسی طرح جو کارکنان یہاں پر ذمہ دار ہیں انتظامات کے لیے، ان سے گزارش ہے کہ پارکنگ کے پاس بھی کچھ احباب پہنچ جائیں تاکہ وہاں پارکنگ کا نظام صحیح ہو سکے۔ آئیے ہم اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کرتے ہیں ایک اور سپوت اس ادارے کے محمد سرتاج سلمہ وہ بھی آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ مولانا شمس الدین صاحب اور مفتی اعجاز صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حافظ صدام صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول کریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے تو موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین اکرام، ابھی میں نے قرآن کریم کے ایک آیت تلاوت کی، اس میں بہت ہی اہم بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس میں ایک ایسا اصول بیان فرمایا ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ نے بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی۔
اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت کا انکار کیا اور مخالفت کی تو فرقہ وجود میں آ گیا، وہ ہے فرقہ قادیانیت۔ قادیان کا رہنے والا ایک شخص انگریزوں کا چیلا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کا دعویٰ عجیب تھا۔ اہل سنت والجماعت کی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پورے قرآن کی کل 6666 آیت ہے، ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک آیت کا نہ ماننا بھی کفر ہے۔ اب اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لہذا مرزا غلام احمد کو نبی جاننا کفر ہے۔ اسرائیل نے جنگ آزادی کو مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انگریزوں کا چلا بند کر کے دعویٰ کیا۔ علماء کرام نے مخالفت کی، وہ لائن باز نہ آیا۔ ایک اصول سمجھ لو کہ جس چیز سے ابتدا ہوتی ہے اسی پر انتہا بھی ہوتی ہے۔ جس سوچ سے یہ پنکھا چلے گا اسی سوچ سے بند بھی ہوگا، اس کے علاوہ سوچ سے بند کرو گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ بے دینی کی ہوائی اتنی عام ہے کہ دین کی طرف امت کا آنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ابتدا ہو گیا تو اسی پر انتہا بھی ہوگی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولین بھی ہے اور نبی آخرین بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تو تخلیق بھی تو دیکھا اشفر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوچھا اللہ سے کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہ آخری کی ذریت سے ہے اور یہ آخری نبی ہے، اور انہیں ابھی سے نبوت دے دی گئی ہے، مگر ظہور بعد میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب لغزش ہو گئی تو توبہ اور معافی حاصل کرنے کے لیے بہت دریا مزاری کی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عرش والی واقعات آ گئی اور ان کی معافت سے مانگا تو توبہ قبول ہو گئی۔ بہرحال ساری دنیا میں قانون ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہے انتہا بھی ہے۔ نبوت کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے تو انتہا بھی انہیں پر ہوگی۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور روپیوں کا لالچ دے کر اس کا اقرار کرے تو کہہ دو کہ سب کچھ ہم کہہ سکتے، بیچ سکتے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ لہذا آج کل جہاں جہاں قادیانیت پھیل رہی ہے، غریب طبقے کے مسلمانوں کو روپیوں کا لالچ دلا کر وہ ایمان کا سودا کرواتے ہیں۔ ہندوستان کے علماء کو چاہیے کہ اس کے سر گوبھی کے لیے تیار ہو جائے اور مقابلہ کرے اور اس کو ہاتھ سے نیست کر دے۔ ہندوستان میں جتنے علماء ہوئے آزادی کے بعد مسلمانوں نے انہیں برداشت کیا، کل 6150 بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنے علماء ہوئے، لیکن مسلمانوں نے صبر سے کام لیا اور سب کے لیے تیار رہے ہیں۔ BBC لندن نے 2000 میں نشر کیا تھا کہ مسلمان ایک آواز پر 3 لاکھ جمع ہو گئے۔ تو آج بھی خبر بستہ رہنا چاہیے اور ان فتنوں کے خلاف حکومت کے لیے تیار ہو جائے۔ آج اس امت میں علماء کا دین کی اشاعت میں مسلمانوں کے ذمے ہے۔ پہلے امتوں میں دین کا کام صرف نبی کرتے تھے، آج اس امت میں یہ علماء کا کام ہے، اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کام کے لیے ہم قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اس پروگرام کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہماری دعوت پر تشریف لانے والے ایک مشہور نعت خواں اور خوبصورت ترنم کے ساتھ منظوم کلام پیش کرنے والے قاری محمد کامران اکمل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی ایک مخصوص آپ کی سرزمین پر پہلی بار آنے کا موقع ملا اور اسٹیج پر اکابر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ آئیے حضرات، ایک شعر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سارے لوگ جی لگا کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد۔ ہر طرف جانا ہے، ہر طرف جانا ہے، آمنہ کے آنگن میں، آمنہ کے آنگن میں، ہر
आमिना के आंगन में हर तरफ उजाला है। आमिना के आंगन में हर तरफ उजाला है। आमिना के आंगन में कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में। हजरत अगर आप लोग को शेर समझ में आए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए, ऐसा ना हो कि आप खामोशी रहे। हर तरफ उजाला है। आमिना के आंगन में भीड़ है फरिश्तों की, बेशुमार हूरें। कहते हैं सुभान अल्लाह। भीड़ है फरिश्तों की, बेशुमार हूरें। भीड़ है फरिश्तों की, बेशुमार हूरें। आज कैसा मेला है, आज कैसा मेला है। आमिना के आंगन में, आमिना के आंगन में। फरिश्ते उस जगह पे घड़ी कुर्बान रहते हैं। फरिश्ते उस जगह पर घड़ी कुर्बान रहते हैं, जहाँ पर आलिमे की हाफिज़े कुरान रहते हैं, जहाँ पर हाफिज़े कुरान। फरिश्ते उस जगह पर घड़ी कुर्बान रहते हैं, जहाँ पर आलिमे भी हाफिज़े कुरान रहते हैं। ओ हिकारत की निगाहों से न देखो ए जहाँ वालों। हिकारत की निगाहों से न देखो ए जहाँ वालों। मदारिस में रसूलुल्लाह के मेहमान रहते हैं। मदारिस में रसूलुल्लाह के मेहमान रहते हैं। फरिश्ते उस जगह पर घड़ी कुर्बान रहते हैं। मैं मदरसे की शान हूँ, मैं मदरसे की शान हूँ, मैं बाप माँ की जान हूँ। मैं मदरसे की शान हूँ, मैं मदरसे की शान हूँ, मैं बाप माँ की शान हूँ। जहान में महान हूँ, मैं हाफिज़े कुरान हूँ। हाफिज़ कुरान बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मैं मदरसे की शान हूँ, मैं मदरसे की शान हूँ, मैं बाप माँ की जान हूँ। मैं मदरसे की शान हूँ, मैं बाप माँ की जान हूँ। जहान में कुरान, जहान में महान हूँ, मैं हाफिज़े कुरान हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो मेरे साथ साथ थे उन्हें न बोल पाऊंगा। जो मेरे साथ साथ थे उन्हें न बोल
اچھے ماشاءاللہ. آئیے حضرات مکمل نعت پاک سماعت فرمائیں. جی ارشاد. عالم کے سلطان عالم کے سلطان ہے محبوب داور عالم کے سلطان ہے محبوب داور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سارے نبی میں سارے نبی میں ہے بالا و برتر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آئے جب دہر میں میرے آقا آئے جب دہر میں میرے آقا پھیلا ہے ہر سو جہاں میں اجالا دائی حلیمہ دائی حلیمہ کا چمکا مقتدر اللہ بہت اچھا سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس شعر پر سارے علماء کرام کی خاص توجہ کا ذائقہ. جی ارشاد. آیا تھا ظالم کعبہ کو ڈھانے آیا تھا ظالم کعبہ کو ڈھانے ایسے مٹایا ہے اس کو خدا نے آیا تھا ظالم کعبہ کو ڈھانے ایسے مٹایا ہے اس کو خدا نے ہارا پرندوں سے ہاتھی کا لشکر اللہ اکبر. بہت اچھا دوبارہ ارشاد فرما دیجیے. بہت اچھے ماشاءاللہ. آیا تھا ظالم کعبہ کو ڈھانے ایسے مٹایا ہے اس کو خدا نے ہارا پرندوں سے ہاتھی کا لشکر اللہ اکبر اللہ اکبر. عالم کے سلطان محبوب داور اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی صاحب. اللہ اکبر اللہ اکبر. نکلے عمر قتل کرنے نبی کو نکلے عمر قتل کرنے نبی کو دیکھا ہے جس دم عمر نے نبی کو پل بھر میں بدلا پل بھر میں بدلا ہے ان کا بھی تیور اللہ اکبر اللہ اکبر. عالم کے سلطان محبوب داور اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. بہت اچھے جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ بہت ہی. آپ حضرات جو مدرسے کو روزانہ یا ماہانہ یا سالانہ جو بھی تعاون فرماتے ہیں اور عنایت کرتے ہیں وہ آج آپ کو 2 حافظ قرآن کی لیتے ہیں اور بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. ہم ایسے لوگوں سے بار بار یہ کہیں گے کہ آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے. الحمدللہ بڑی اچھے انتظام اور انصرام کے ساتھ یہ انتظامی کمیٹی اور نوجوانوں نے شہر بالکنڈہ اس مدرسے کو آگے بڑھانے کی کوشش
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिनल करीम अम्मा बाद। महतरम सामीन इकराम और मेरे अजीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, यहाँ मैं बहैसियत सामिया के दरमियान तशरीफ़ लाया था, मगर हमारे साथी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब जो इस वक़्त प्रोग्राम चला रहे हैं, उन्होंने 2-4 मिनट आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करने का मौका दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल व करम है कि मैं यहाँ गुज़िश्ता कई बरस पहले बहुत ही लगन और जुस्तजू और मेहनत के साथ यहाँ पर खिदमत कर चुका हूँ। आप हज़रात बखूबी वाक़िफ़ हैं। अब इसके अंदर मज़ीद तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा और आपका यहाँ पर जो जमा होना है वो बहुत ही मुबारक है और बहुत ही उम्दा है और अच्छा है। और यहाँ पर अकाबिरीन हज़रात तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात के सामने उनके कीमती खिताबात सुनने हैं, लिहाजा मैं सभी हज़रात जो यहाँ पर मदऊ किए हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले मेहमानों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आपकी हमारी सब की खिदमत को कबूल फरमाए और इखलास के साथ मज़ीद इस काम को आगे बढ़ाते हुए और हमारे जो इस मदरसे के और दीगर मदरसों के सरपरस्तान हज़रात हैं उन सब को अल्लाह पाक सेहत कामिला व आजिला मुस्तमिरा दायमा अता फरमाए और जिनकी सरपरस्ती में और जिनकी निगरानी में हमने यहाँ पर काम किया उनसे उनके लिए भी हमारी दिली ख्वाहिश है, दिल से दुआ है कि जनाब काजी हसन मुहिउद्दीन अंसारी साहब जो हमारे मुशफ़िक़ हैं, मुरब्बी है, हम उनकी सरपरस्ती में रह के बहुत ही इत्मीनान के साथ पूरे मसाजिद में इमामत किए हैं। पूरा मदरसा हमारे ज़िम्मे सुपुर्द था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हुस्न खूबी के साथ इस काम को अंजाम दिए हैं। और मज़ीद इरादा था, एक इरादा ये भी था कि हमारे ज़रिए से और मंडल के जितने देहात हैं उन सब में यहाँ के मदरसे का एक एक हाफिज़ वहाँ पर देहात में मौजूद हो जाए, लेकिन पता नहीं नज़र बद कही या फिर क्या कही है, यहाँ से हमको बोरिया बिस्तरा लपटना पड़ा। बहरहाल अल्लाह ताला हमारी इन खिदमत को कबूल फरमाए और जो हज़रात कर रहे हैं उन सब की खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इखलास के साथ इस काम को जारी रखने और करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम उलमा इकराम, सदर जलसा, सदर मरकज़ी कमेटी, इस मकाम के काज़ी साहब, मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ पर हाज़िरी इस्तिफ़ादे की गरज से हुई है। नाज़िम जलसे का हुक्म है कि कुछ तासुरात इस मदरसे के ताल्लुक़ से रखे जाएं। थोड़ी सी जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसकी हल्की सी तफसीर के बाद 2-4 मिनट में इंशाअल्लाह इस मदरसे के कुछ तासुरात इंशाअल्लाह कर मैं जगह लूँगा। असल में मदारिस इस्लामिया हम और आप सुनते हैं कि ये इस्लाम के किले हैं जहाँ से इस्लाम की शरीयत की हिफाजत की जाती है। उसी सिलसिले की ये भी एक कड़ी है जो यहाँ मदरसा
बालकोटे में चल रहा है एक ज़माने से कई मरतबा हाज़िरी हुई है यहाँ पर, खासकर हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद साहब नब्बरअल्लाहु मरकज़हू की मायत में कई मरतबा यहाँ पर आना हुआ। यहाँ से इस सरज़मीन से मेरा ताल्लुक़ भी है, इसलिए कि 1990 में मेरी हिफ्ज़ की तकमील के बाद सबसे पहले मैं तरावी जो सुनाया हूँ यहाँ मस्जिद आलमगीर के नाम से है, जो उस वक्त में टीन शेड में थी वो। और इत्तेफाक ऐसा है कि उस मस्जिद के दोबारा बनने के बाद सबसे पहले मुझे वो सआदत हासिल हुई। उस वक्त के मौलवी इकबाल साहब वहाँ इमामत करते थे। बहरहाल एक लतीफ़ा भी उस वक्त में पेश आया, हाजी साहब मौजूद हैं। उस ज़माने में हुफ़ाज़ किराम बहुत कम मिलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का निज़ाम ऐसा चला कि हमारे इस इलाक़े में भी बहुत सारे मदारिस खुल गए हैं माशाअल्लाह। क़रिया क़रिया मंडलों में मदारिस हैं, हुफ़ाज़ की कसरत है। इल्ला माशाअल्लाह कोई छोटा मोटा गाँव होगा जहाँ पर हाफिज़ कुरान ना हो, वरना हर जगह माशाअल्लाह हुफ़ाज़ की अच्छी खासी तादाद है। यहाँ पर भी माशाअल्लाह हुफ़ाज़ यहाँ इस मदरसे के सरकारी हुए। उस ज़माने में कमियाब थे हुफ़ाज़ किराम। हमारे इस रियासत से हटकर दूसरी रियासतों से हुफ़ाज़ किराम यहाँ आके उनका इंतज़ाम होता था। यहाँ पर जिस वक्त मस्जिद में बात आई कुरान सुनाना है तो हम उस वक्त फारिग होकर आए थे, बिल्कुल कम उम्र थे। खाजी साहब की नवाजिश कि उन्होंने हमारा इंतखाब किया हाफिज़ साहब के उन्वान से। हुफ़ाज़ का मरतबा बताने के लिए मैं अपना वाक़या सुना रहा था। बिल्कुल कम उम्र था मैं, लेकिन उस ज़माने में चूँकि एजाज़ था, हुफ़ाज़ किराम की कदरें थी, तो मुझे चांद रात को लेने के लिए हाजी साहब बज़रिए जीप कमांडर उस वक्त मिले क्या आप साहब को लेके आए। हाजी साहब को गालिबन याद होगा। अब वहाँ हमारे वालिद मोहतरम से बात करके मुझे साथ में लेकर आए यहाँ पर। उस ज़माने के लिहाज से लोग इंतज़ार में भी थे, चूँकि चांद रात थी, तरावी का सुनाना था, खाने वगैरह का इंतज़ाम था। लेकिन उतनी बड़ी कमांडर जीप में मैं और कमेटी के कुछ दो अहबाब थे बस। अब यहाँ पहुँचने के बाद घर पर जैसे ही सारे लोग उतरे, मैं उतर गया। यहाँ पर जो इंतज़ार करने वाले लोग थे वो ये समझ रहे थे कि वे हाफिज़ साहब उतरने वाले हैं, हाफिज़ साहब का बच्चा पहले उतर गया। तो फिर जीप में झाँक के देख रहे हाफिज़ साहब कहाँ गए, ऐसा हो जाए यही बच्चा आ गए सुना। तो उस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुझे गोया कि सआदत मिली और यहीं से गोया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला तरावी सुनाने का हुआ। हमारे मुशफ़िक़ उस्ताद नाज़िरा पढ़ाते थे मौलवी मसूद अली साहब। बाज़ाब्ता तौर पर उस ज़माने में कदर देखिए कैसी हिम्मत अफजाई करते थे। हमें भी हुफ़ाज़ और उलमा की इस दर्जे कदर करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त अफजाई करनी चाहिए। वो बाज़ाब्ता तौर पर हमारे बस्ती का बच्चा कुरान बालकुने में सुना रहा है तो मेरी हिम्मत अफजाई के लिए, दिलजोई के लिए बाज़ाब्ता एक मरतबा आटो लेकर मेरे पीछे नमाज़ पढ़ी। आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो ऐसी हिम्मत अफजाई उस ज़माने में होती थी। बहरहाल माशाअल्लाह ये भी इदारा है, असल कुरान करीम का मौजज़ा है कि अल्लाह ताला जिसके सीने में चाहे अपने इस कलाम को महफूज फरमा दे। बहुत सारे हुफ़ाज़ यहाँ पर भी माशाअल्लाह बने हैं। एक दो चार मरतबा इम्तिहान के सिलसिले में भी यहाँ पर हाज़िरी भी, लेकिन एक गहरा ताल्लुक़ है और यहाँ के सिलसिले में मुस्तक़िल तौर पर राब्ते में रहते हैं। और आपके जो सदर मोहतरम हैं जनाब इफ्तिखार साहब, उनसे भी माशाअल्लाह हमारी पुरानी यादें उनके साथ वाबस्ता हैं जिस वक्त से हम पढ़ते थे। बहरहाल उलमाए किराम असल कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन तासुरात की जब बात आ गई और उलमा से जो है इस्तिफ़ादे की बात आ गई तो मैं अपने इन चंद कलिमात पर ही आज की इस गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। और यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, आप हज़रात भी उनके इंतज़ार में हैं, मैं भी उसी नीयत से यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। बहरहाल ये मेरी सआदत थी कि कुछ अपने ही सही वाक़यात
हुफ़ाज़ की क़दरदानी के सिलसिले में सुनाया हूँ। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन मदारिस की और यहाँ से फारिग़ होने वाले हुफ़ाज़ और उलमा की ज़्यादा कदर करने की हम सबों को तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ऐ मोमिनो सुनो ये हकीकत कुरान की, जन्नत में लेके जाएगी तिलावत कुरान की। हम सबको कुरान मजीद की तिलावत करते रहना चाहिए। अभी चूँकि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना भी आने वाला है, जिस महीने को कुरान मजीद से ख़ास मुनासबत और ताल्लुक़ है, और कुरान मजीद की अज़मत, फजीलत और उसके पढ़ने का सवाब, उसकी बरकतें हम सब अपनी आँखों से अपने घरानों के अंदर देख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि दोस्तों हम कुरान मजीद से अपने ताल्लुक़ को जोड़ने वाले बने, कुरान से और कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले से। और फिर जहाँ कुरान मजीद पढ़ाया जाता है यानी ये मदारिस, इनसे भी मोहब्बत करना चाहिए। ये भी सवाब, बाइसे सवाब और बाइसे अजर है। और जिस वक़्त कुरान मजीद से हम लोगों ने अपने रिश्ते को तोड़ लिया है तो ज़िल्लत और रुसवाइयाँ हमारी मुक़द्दर बनती जा रही हैं। आप गुज़िश्ता ज़मानों पर भी नज़र डालिए, और इंशाअल्लाह भी हज़रत मुफ्ती साहब से भी हमको बात सुनना है, उसके अंदर भी आपको ये बात मालूम होगी कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। कुरान को हमने छोड़ दिया तो ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुक़द्दर बन गई। जहाँ जहाँ भी कुरान मजीद को छोड़ा गया वहाँ वहाँ पर हालात आए, अज़ाबात आए, अल्लाह का गज़ब और अल्लाह का कहर नाज़िल हुआ। तो क्या हम मुसलमान कुरान से दूर रहकर अपनी कामयाबी के ख्वाब देख सकते हैं? यकीनन नहीं दोस्तों। इसलिए कुरान मजीद से हमें अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। आइए मज़ीद इस सिलसिले में हम कुरान हदीस की रोशनी में हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन और हम सब के सरपरस्त व मुरब्बी हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब मद्दज़िल्लाहुल आली से हम ख्वाहिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती बयान से इस्तिफ़ादे का हम सबको मौका इनायत फरमाएँ। माशाअल्लाह जो अहबाब दूर बैठे हुए उनसे भी गुजारिश है कि वो करीब तशरीफ़ ला लें। बच्चों से भी ख्वाहिश है कि वो बिल्कुल खामोशी के साथ रहें, और ख़वातीन से भी गुजारिश है कि टीवी मुशायरा और इसी तरह RK मुशायरा मीडिया और इसी तरह रोशन टीवी के अहबाब का भी हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक हम तमाम को तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमलतुल क़ुरआन अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कुरान करीम के अंदर जिन उलुल अज़्म पैगंबरों का जिक्र आया है उनमें से एक अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की है। कुरान करीम में मुतअद्दिद उन्वान के तहत 16 बार उनका जिक्र आया है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का पूरा घराना नबियों और रसूलों का, उनके वालिद इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैगंबर, ताया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैगंबर, दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर, उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैगंबर। गौर कीजिए कि पूरे घराने में, घर के अफराद में, मर्द ख़वातीन में, बच्चों बड़ों में कैसी दीनदारी रही होगी, तक़वा, तहारत का कैसा पाकीज़ा
वो नूरानी माहौल रहा होगा। ऐसे घर के अफराद के बारे में किसी को ये गलत फहमी नहीं हो सकती कि उस घर के अफराद इस्लाम से फिर जाएंगे, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने इंतकाल के वक्त अपने बेटों को जमा किया और उनसे एक सवाल किया, मा तअबुदून मिन बादी, ये मेरे बेटो तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? बेटों ने जवाब दिया कि हम आपके परवरदिगार, आपके आबा और अजदाद के परवरदिगार एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसी के फर्मा बरदार होकर रहेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को वसीयत की कि मेरे बेटो, अल्लाह ने इस्लाम को तुम्हारे लिए मुंतखब कर लिया है, तुम्हारी मौत इस्लाम पर आनी चाहिए। मोहतरम हजरात, मोहतरम ख़वातीन, गौर करने का मकाम है कि जब बड़े बड़े पैगंबर अपनी औलाद के ईमान के बारे में इस बात के फिक्रमंद हैं कि वो आखिर सांस तक इस्लाम पर इस्तिकामत के साथ कायम रहें, तो आज के इस पुरफिकन दौर में, आज जबकि हमारे दीन और ईमान पर चौमुखी हमले हो रहे हैं, ईमान सब फितनों का दौर है, ईमान का ज़ाय हो जाना बहुत आसान है, तो आज के दौर में मुसलमान माँ बाप को अपनी औलाद की दीनी तालीम और दीनी तरबियत के बारे में कितना ज़्यादा फिक्रमंद होने और कितना ज़्यादा दर्दमंद होने की ज़रूरत है। इसी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो तुम अपने को भी, अपने अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। सवाल ये पैदा होता है, इंसान अपने आप को, अपनी बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से, जहन्नम के अजाब से कैसे बचा सकता है? उलमा ने लिखा है उसके लिए जरूरी है कि अपने ईमान को मजबूत करना, ईमान के अंदर कमाल पैदा करना और अमल सालेह वाली, नेकी व तक़वे वाली जिंदगी गुजारना। ईमान में कमाल पैदा करने के लिए भी इल्म दीन का होना जरूरी है, नेकी तक़वे वाली, अमल सालेह वाली जिंदगी गुजारने के लिए भी इल्म दीन का होना जरूरी है। इल्म दीन ही वो दौलत है जिससे अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। इल्म दीन ही वो दौलत है जिससे इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की सदाकत, इस्लाम का रुतबा मालूम होता है। इल्म दीन ही वो दौलत है जिससे शरीयत के अहकाम, अल्लाह के अवामिर, अल्लाह के नवाही के कौन से काम करने के हैं, कौन से काम ना करने के हैं, बचने के हैं, ये सारी तफसीलात इल्म दीन के जरिए से ही हासिल होती है। अपनी औलाद की दीनी तालीम की फिक्र करना, उनका दीनी मैन बनाना, ये इस्लामी फरीज़ा है। आज माँ बाप अपनी औलाद की दीनी तालीम तरबियत के बारे में मुजरिमाना गफलत बरत रहे हैं। आज माँ बाप अपनी औलाद के बारे में सिर्फ इस बात के फिक्रमंद हैं कि बस उनको डिग्रियां मिल जाएं, बाकी वो सच्चे पक्के मुसलमान बने और ईमान से फितनों के दौर में दीन की अमानत को थामे रहे, गुमराह कुन अफकार नजरियात से अपने ईमान को बचा पाए, इसकी फिक्र करना फजूल समझ रहे हैं।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब फितने जाहिर होने वाले हैं। सुबह का मोमिन शाम में काफिर हो जाएगा, शाम का मोमिन सुबह होते होते काफिर हो जाएगा, दुनिया के खातिर अपने दीन को बेच डालेगा। ये क्यों होगा? इल्म दीन के न होने की वजह से। आज इस्लाम का लेबल लगाकर मुसलमानों के भेष में गुमराही फैला रहे हैं। आज मुशरिकाना अकायद नजरियात की तरफ खुल्ला दावत दी जा रही है। आज ये फितनों का दौर है। आज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इस मुल्क के अंदर हमारी नई नस्ल के ईमानी वजूद का मसला है। उनका ईमानी वजूद खतरे में है। सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई वो कुरान मजीद की है, सबसे बड़ी नेमत। इसका हक क्या है? इसको पढ़ना है, तजवीद के साथ पढ़ना है। इसका हक क्या है? अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है। हर घर से एक बच्चा जरूर इल्म दीन हासिल करे। ये हुफ्फाज क्या है? खुदाई फौज है। हुफ्फाज क्या है? अल्लाह के लाडले हैं। हुफ्फाज क्या है? अल्लाह के मुंतखब है, चुनिंदा है। इनका बहुत ऊंचा मकाम है। ये हुफ्फाज क्या है? हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मत के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। ये मदारिस क्या है? यहां से हीरे और मोती तैयार हो रहे हैं। ये हुफ्फाज़े किराम, हुफ्फाज़े कुरान, ये क्या है? ये हमारे सरों के ताज हैं। मदारिस क्या है? रूहानियत के ट्रांसफार्म है। आपके पूरे शहर बालकोंडा में यहीं से रूहानियत की बिजली सप्लाई हो रही है। ये मदारिस क्या है? इनकी निस्बत हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी से जुड़ी हुई है। इनकी निस्बत मक्के मुकर्रमा में पहला इदारा तालीम और तरबियत का मकाम, जिसको दार अरकम कहते हैं, जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तालीम और तरबियत फरमाया करते थे, उससे इसकी निस्बत जुड़ी हुई है। मदीने मुनव्वरा के अंदर आपने जो मदरसा कायम किया मस्जिद नबवी के सहन में सुफ़ा, उससे इसकी निस्बत जुड़ी हुई है। मेरे भाइयों, इस मुल्क के अंदर अहले बातिल ये चाहते हैं कि कुरानी तालीमात बंद हो जाए, मदारिस पर ज़वाल आ जाए। वो चाहते हैं कि इस्लामी तशख़्ख़ुस खत्म हो जाए। आज के दौर में ये बहुत बड़ी नेमत है। तारीख हमें बताती है कि जिन मुल्कों में मुसलमान दीनी तालीम से बेजार हो गए, उलमा से, दीनदारों से, मदारिस से बेजार हो गए, फिर अल्लाह ने जालिमों को भी मुसल्लत कर दिया। 30-30 साल, 40 साल, 70-70 साल तक जालिम फौज ने, दहरियों ने, जालिमों ने जबरदस्ती मुसलमानों पर जुल्म उठाते हुए दीन पर चलने से उन्होंने रोका। मदारिस पर पाबंदी, अजानों पर पाबंदी, नमाजों पर पाबंदी। डॉक्टर हाफिज नूर अली लिखते हैं अपना वाकया कि मैं MBBS की तालीम के लिए रूस की एक आज़ाद रियासत ताजिकिस्तान, उसका जो दारुल हुकूमत है दोशंबा, वहाँ मैं डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा था। रमज़ान का महीना आया तो हॉस्टल ही के अंदर मैं तरावी में कुरान सुनाने लगा। 27वीं शब
जो ख़त्म कुरान की शब थी, कुरान मेरा मुकम्मल होने वाला था, तो हम साथियों ने, स्टूडेंट्स तलबा ने यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के तरफ जो मुस्लिम आबादी है, हमने उन लोगों पर मेहनत की, तवज्जो दिलाई कि देखो आज तरावी में कुरान ख़त्म होने वाला है, दुआ होने वाली है, आप लोग भी शरीक होना। उनके लिए हमने दावत का भी एहतमाम किया। लिखते हैं तरावी मुकम्मल हो गई, दुआ के बाद मैंने देखा कि एक 90 साल का बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे हाँफते कांपते मेरे करीब आया। उसने सलाम किया, पेशानी को चूमा और कहने लगा कि बेटे तुम जब इंडिया जाओ तो अपने वालिद को मेरा सलाम कहना, शुक्रिया अदा करना। अब बूढ़े के आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगा कि बेटे 70 साल के बाद आज कुरान सुनने का मौका मिला। 70 साल से मेरे कान तरस गए कि मैं कुरान को देखूं, कुरान सुनूं, लेकिन नहीं हो सका। अब से 70 साल पहले ये रूसी, ये दहरिये हम पर जो मुसल्लत हुए, उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमारे घरों की से जो है कुरान करीम, हदीस की किताबें, अरबी जबान का लिटरेचर, हर चीज को उन्होंने हमारे घरों से निकाल कर चौकों पर जमा करके सबको जलाया और ये कार्रवाई साल तक चलती रही, घरों की तलाशी। अब उसके बाद ऐसा हुआ, अजानों पर पाबंदी, हम अजान नहीं दे सकते थे, नमाज नहीं पढ़ सकते थे, मसाजिद को ताले लगा दिए गए, मदारिस बंद कर दिए गए, हम अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ा सकते थे, कुरान नहीं सिखा सकते थे, हम खुद कुरान नहीं पढ़ सकते थे। अगर माँ बाप बच्चों को या उस्ताद शागिर्द को कुरान पढ़ाता हुआ नजर आता तो उसको या तो कैद कर देते, नहीं तो उसको गोली से शूट कर देते, नहीं तो सूली पर चढ़ाते। ऐसे मजालिम एक दिन 2 दिन नहीं, 30 40 साल तक, 70 साल तक हम पर ये जुल्म होता रहा। बाद की नस्लें ऐसी आई हमारे घरों में, उनको नहीं मालूम दीन क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, मजहब क्या है, शरीयत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, वजू, नमाज, रोजा, जन्नत, दोज़ख, हर चीज से वो नावाकिफ। 70 साल पहले जो कुरान सुना था, जब मेरी उम्र 20 बरस की थी, आज 70 साल के बाद बेटे मैं कुरान सुना। बस वो हाफिज साहब लिखते हैं, वो बूढ़ा आदमी अब वो अपनी दास्तान सुनाते सुनाते एकदम रुक गया। उसने एक आह खींची, फिर सवाल किया कि बेटे तुम जानते हो कि ये मुसीबत हम पर क्यों आई? बूढ़ा रुक गया कुछ देर के लिए, उसके बाद उसने सवाल उठाया, बेटे तुम जानते हो कि ये मुसीबत हम पर क्यों आई? कहने लगा कि उस जमाने में हम खुद दीनी मदारिस से बेजार हो गए थे, उलमा से बेजार हो गए थे। उसके बाद अल्लाह ने ये जालिम रूसियों को हम पर मुसल्लत किया अजाब की शक्ल में। मेरे भाइयों, मैं यहां रुककर याद करना चाहता हूं, आज वाकईतन दीनी तालीम की अजमत हमारे दिलों में कितनी है, हमारी खवातीन के दिलों में कुरान की तालीम की अजमत कितनी है। अपने बच्चों को हाफिज कुरान, आलिम दीन बनाना, ये जज्बा कितना हमारे दिलों में है। आज यहूदियों के नजदीक जब तक यहूदी बच्चे तौरात, जिसको वो लोग तालमुद बोलते हैं, उसकी तालीम यानी मजहबी तालीम हासिल किए बगैर स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। आज हमारे पास दीनी तालीम की अजमत क्या है। आज 2 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। कितने घराने ऐसे हैं, एक भी हाफिज कुरान नहीं, एक भी आलिम दीन। कितने खानदान ऐसे हैं, उस पूरे खानदान में एक हाफिज कुरान नहीं, एक आलिम दीन नहीं। कितनी बस्तियां ऐसी आज भी वहां एक हाफिज कुरान नहीं, एक आलिम दीन नहीं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, डिग्रियां पढ़ाओ, लेकिन उसको सच्चा पक्का मुसलमान बनाओ। आज हम कदर नहीं कर रहे।
अभी चंद महीने पहले केरला के अंदर कुरान का मुसाबका, तो एक हिंदू लड़की स्कूल में पढ़ने वाली वो भी हिस्सा ली। उसने ऐसी मेहनत की माशाल्लाह, वो जो मुकाबला हुआ, मुसाबका हुआ, तो वो जीत गई, यानी इम्तियाजी कामयाबी उसको मिली। आज अल्लाह ताला ऐसी मिसालें हमारे सामने ला रहे हैं। नौ मुस्लिम, उनको देखो कुरान के कैसे आशिक, कैसे आशिक इलाही, कैसे आशिक रसूल। आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को आशिक इलाही बनाएं, आशिक रसूल बनाएं, आशिक कुरान बनाएं। चंद माह पहले फलस्तीन के अंदर बड़ी खवातीन का मुसाबका हुआ। बड़ी खवातीन जो शादीशुदा बच्चे वालियां, वो जो हाफिजा बनी, उनका इम्तिहान हुआ। ये बताया गया कि औरतें गोद के अंदर बच्चा उठाए हुए वो अपना हिफ्ज सुना रही है, सुबह से शाम तक उन्होंने पूरा कुरान सुना लिया। आज देखो कैसे उन पर हालात, मुसीबतें, लेकिन कुरान से ताल्लुक उनका देखिए। हजरत शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज उनको जेल के अंदर बंद कर दिए थे। वो लिखते हैं कि अपनी बैरक के अंदर, जेल में जो कोठरी होती है, कैदियों को जहाँ रखा जाता है, इशा की नमाज के बाद मैं बुलंद आवाज से सूरे यूसुफ की तिलावत करने लगा। तिलावत करते करते थोड़ा वक्त गुजरा तो मुझे यूं महसूस हुआ कि बाहर कोई खड़ा रो रहा है। मैं तिलावत रोक के बाहर निकला तो देखा कि जेल के सुपरिंटेंडेंट पंडित रामजी लाल खड़े हैं, वो रो रहे हैं। मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि शाह साहब, अल्लाह के वास्ते अब कुरान पढ़ना आप रोक दो, अब मेरे अंदर रोने की हिम्मत नहीं है। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, जैसे कुरान पढ़ना शुरू करे, आवाज मेरे कानों में पहुंची तो मेरा दिल ऐसा मुतासिर हुआ, मैं जब से बेख्तियार रो रहा हूँ, हिचकियों से रोते रोते थक गया, अब मेरे पास हिम्मत नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसे भी हमारे उलमाए रब्बानी ही हुए हैं, जब वो कुरान पढ़ते थे तो गैर मुस्लिम हिंदू लोग भी मुतासिर होते थे। आज हर आदमी चाहता है कि मेरा खाना अच्छा हो, नाश्ता अच्छा, दोपहर का खाना अच्छा, शाम का खाना अच्छा, कपड़े अच्छे, गाड़ी अच्छी, मोबाइल अच्छा, मकान अच्छा, सब अच्छा होना, लेकिन मेरी तिलावत उम्दा होना, इसकी फिक्र करने वाले बहुत कम रह गए हैं। आज घरों में सुकून नहीं है, बरकत नहीं है, बड़े टेंशन है, दिलों में सुकून नहीं है, बेचैनी, बेकरारी है। ये अल्लाह ताला को भुला देने का नतीजा है, अल्लाह को भुला देने का नतीजा है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के वक्त तो रोजाना एक मंजिल यानी 6 से 7 पारे पढ़ते थे। पूरी तिलावत के दरमियान वो रोते रहते थे, अल्लाह उनको ऐसा दर्द दिया था। हम भी तो अल्लाह ताला से मांगे, थोड़ा जायजा लें कि हमको कुरान पढ़ने में मजा आता है, क्या हमारी तबीयत बेचैन रहती है कि आज मेरी तिलावत नहीं हुई। अपने बच्चों को आशिक इलाही बनाओ। बाप और बेटा दोनों जा रहे थे, पहले जमाने का वाकया है। चलते चलते अंगूर का बाग नजर आया। बाप ने बेटे से कहा कि ठहर जा, मैं अंदर जाके 2-3 खोशे तोड़ के लाता हूँ, अपन खाते हुए चलेंगे, कोई आगे तो बता देना। अब जाकर जैसे ही वो खोशा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वो मासूम बच्चा वहां से पुकार रहा, अब्बू हमको कोई देख रहा है, अब्बू हमको कोई देख रहा है। ये डर के मारे आ गया, आके उसमें देखा इधर उधर, वहां तो कोई था नहीं। तो कौन देख रहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उस मासूम बच्चे ने कहा कि अब्बू हमें कोई इंसान तो नहीं देख रहा है, लेकिन इंसानों का परवरदिगार तो देख रहा। अल्लाह का वो ध्यान, अल्लाह का वो सच्चा ताल्लुक, ये हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत की बड़ी कामयाबी क्या है? अल्लाह से सच्चा मजबूत ताल्लुक कायम होना। ये पूरे दीन का खुलासा है कि दिलो जान से अल्लाह को चाहना, उसके बगैर इबादतों में जान नहीं पड़ सकती। किसी शायर ने कहा ना, मोहब्बत का वो जुनून बाकी नहीं, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं, नमाज रोजा हज व कुर्बानी ये सब कुछ बाकी, तो बाकी नहीं। आज नमाजें पढ़ रहे बेजान, उम्रे हो रहे, हज हो रहे, कुर्बानियां कर रहे, रोजे रख रहे, ज़कात दे रहे, तिलावत कर रहे, लेकिन उसमें जान नहीं है। जान कैसे पड़ेगी?
इश्क़ इलाही के जज्बे को बढ़ाना पड़ेगा। टीचर ने एक मर्तबा बच्चों से सवाल किया कि बच्चों बताओ तो सही, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा खड़ा, सर मैं तो इंजीनियर बनूंगा। एक खड़ा उसने, सर मैं तो डॉक्टर बनूंगा। ऐसी जवाब था सबका। आखिर में एक छोटा बच्चा रह गया। अब टीचर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए कि बेटे बता तो सही, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? अब वो बच्चा खड़ा हुआ, उसने बहुत ही अदब के साथ कहा, सर मैं तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह जैसा बनूंगा। वो टीचर आदमी पढ़े लिखे थे, लिखते हैं वो जब बच्चा ये जुमला बोला तो मेरे दिल पर एक शाप लगा। मैं हैरान रह गया उस छोटे बच्चे के जवाब से। मैंने पूछा, बेटे तुम डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बनोगे? उस बच्चे ने कहा कि सर मैं तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बनूंगा, इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटे तुम बड़े होकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसे बनोगे ना तो ख्वाब में तुमको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। और सर जितने लोग मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे, सीरत तय्यबा के बारे में शुबुक शुबहात फैला रहे, तौहीन कर रहे हमारे नबी की शान में, मैं तो उनको छोड़ूंगा नहीं जो हमारे नबी को तकलीफ पहुंचा रहे। वो टीचर लिखते हैं वो बच्चा ये जवाब दे रहा था, उसके बस मैं बेख्तियार रो रहा था, इतने आंसू के मैं अब वहां मजीद ठहरना मेरे लिए नामुमकिन होगा। मैं रोते हुए बाहर निकल गया, सोचने लगा कि आज भी ऐसी माएँ मौजूद हैं जो बच्चों को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का तारुफ करवाती हैं। आज मेरे भाइयों अपने घरों के अंदर फिर से वो माहौल लाना है, दीनी हमीयत, बच्चों में दीन की नुसरत का जज्बा पैदा करना है, उनको ईमानी सिफात वाला, दायना सिफात वाला बनाना है। हमारे बच्चे जन्नती और सिफात के हामिल बन जाए, आशिक कुरान बन जाए। आज हर घर से, हर खानदान से बच्चा यहाँ होना चाहिए। जितने गांव देहात इस मंडल से मुताल्लिक हैं, हर देहात से 2-3 बच्चों को लाना चाहिए। बस्ती के मुसलमान खुद तय कर ले कि आज हम अपनी बस्ती से 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों को लाकर यहाँ एडमिशन कराएंगे। बच्चे हाफिज कुरान, आलिम दीन बनेंगे, मुस्तकबिल में वो दीनी फिक्रों के सिपाही, मुहाफिज बनेंगे। वरना इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े तूफान उठने वाले हैं। नई तालीमी पॉलिसी तैयार हो चुकी है। अंग्रेजों ने जो निसाब बनाया था उनका मकसद सोच और फिक्र को बदलना था, लेकिन इस मुल्क का अहले बातिल जो निसाब इस वक्त ला रहे हैं उनका मकसद मुसलमान बच्चों को मुशरिकाना अकायद नजरिया से मामूस करना है। अपने घरों में तिलावत का माहौल बनाएं। हमारे जितने मशाइख हैं रोजाना एक पारा कुरान करीम की तिलावत का वो मामूल बताते हैं, तिलावत करें। और जितने बड़े लोग हैं, खवातीन हैं जो तजवीद पढ़े हुए नहीं है, वो आकर दाखिला में रोजाना 1 घंटा या हफ्ते में 1 दिन सही वो तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीखें। कुरान करीम की तिलावत के हुकूक क्या है? खुश इल्हानी से पढ़ना, अच्छा डूब कर मजे ले लेकर पढ़ना। कुरान करीम की तिलावत के आदाब में क्या है? रोने की कोशिश करना, ध्यान तवज्जो से पढ़ना। अभी से मामूल बनाओ तो फिर आगे रमजान आ रहा, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप तिलावत कर सकेंगे। मेरे भाइयों बहुत खुशनसीब है ये 2 हुफ्फाज़ इकराम, काबिल मुबारकबाद हैं। आज चूंकि मार्केट में सिक्का स्कूल की पढ़ाई का चल रहा, अल्लाह ने करम किया कि बस उन्होंने अपना सफर जारी रखा, आज वो तकमील को पहुंच रहे हैं। उनके माँ बाप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। मदरसे का इंतजामिया, यहाँ की कमेटी, अराकीन, यहाँ के असातिज़ा, इस मदरसे का ताउन करने वाले, मदरसे से हमदर्दी खैर खाई रखने वाले सभी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। हदीस में कि जो माँ बाप अपने बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाते हैं तो अल्लाह उनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर देते हैं।
और फरमा के जिस सीने में कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं वो उजड़ा हुआ घर है। ये मदरसा इस शहर के लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है। इसकी कदर होनी चाहिए, इसका ताउन भी करना चाहिए, बच्चों को भी फराहम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत है कि बच्चा हाफिज़ कुरान बनने के बाद भी एसएससी का इम्तिहान लिख सकता है। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़्ल करम है कि अल्लाह ताला ने इस मदरसे से 2 हुफ़ाज़ कुरान जिनकी आज दस्तारबंदी होने वाली है, और ये जाहिर है कि 2 बच्चों का हाफिज़ कुरान बनना इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। लेकिन हमारा जो विजदान है, हमारा जो एहसास है कि मदरसा कदीम है, कम से कम हर साल एक अच्छी खासी तादाद बच्चों के हाफिज़ कुरान बनकर यहाँ से निकलनी चाहिए। सबको जायजा लेना चाहिए कि इतना बड़ा एक तारीखी जो है ये मंडल है, तारीखी मकाम है, बहुत सारे खानदान यहाँ हैं, सैकड़ों की तादाद में मकानात हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? मुझे बताएगा कि 40 से 50 की तादाद है। मेरे भाइयों, पूरे मंडल को इसमें शामिल कर ले तो ये तादाद बढ़नी चाहिए। कम से कम 100 बच्चे यहाँ ज़ेरे तालीम हो, हर साल 5-10 बच्चे हाफिज़ कुरान बने। बड़ों के लिए बालिगान सेंटर भी यहाँ कायम हो, हमारे नौजवान, हमारे शादीशुदा, बड़ी उम्र के लोग वो भी नूरानी कायदा तजवीज़ से पढ़े, पारायण तजवीज़ से पढ़े। ख़वातीन के लिए भी इस्लामिक सेंटर होना चाहिए, वो भी तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ना सीखें। याद रखो मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त अहले बातिल इस्लाम को कमजोर करने के लिए दीनी मदारिस, मकातिब कुरानिया के निज़ाम को कमजोर करने के लिए उनके जो मंसूबे हैं उनको फेल करना है, तो इन मदारिस से हमको वाबस्ता होना पड़ेगा। इनको मोहब्बत की नज़र से देखिए। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे क्या हैं? मेहमानान रसूल हैं। आज मैं पढ़ रहा था, उसको सुना के अपनी बात को समेट लूंगा। एक बड़े आलिम दीन हुए हैं, मौलाना ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। 2-3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ पड़ोस मुल्क के। वो लिखते हैं कि मदरसे के चंद बच्चों ने कोई शरारत की होगी तो उन्होंने उनको सजा दी। उसमें एक बच्चे को ज्यादा सजा हो गई, तो उसकी वजह से उनका हाथ मफलूज हो गया, हाथ काम करना, हरकत करना छोड़ दिया, परेशान हो गए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक कर कहा कि भाई ये आपका हाथ तो कभी काम करता था क्या? इसकी पूरी नसें सूख गई और परेशान हुए कि या अल्लाह ये क्या होगा। फिर उन्होंने गौर किया, तौबा इस्तिग़फ़ार किया कि अल्लाह ये सजा जो है, मेरा हाथ बिल्कुल मफलूज हो गया, बेकार नाकार हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि भाई हाँ, मैं बच्चों को जो सजा दिया था उसमें शायद मेरी तरफ से ज्यादती हो गई, बस इसका इलाज ये है कि मैं जाकर बच्चों से माफी मांगू। ये सीधा मदरसा पहुंचे, बच्चों को उन्होंने जमा किया और उन्होंने कहा कि देखो मैं भी बशर हूँ, इंसान हूँ, मुझसे जो है तुम लोग जो शरारत करे उस पर मुझे जो सजा देनी चाहिए थी उसमें मेरी तरफ से ज्यादती हुई, उसकी वजह से आज मेरा हाथ मफलूज हो गया। तो जिस बच्चे को उन्होंने ज्यादा मारा था या ज्यादा जो है डांट डपट की सख्ती की थी, अब उस बच्चे से कह रहे कि बेटे तुम मुझे माफ कर दो। वो बच्चा भी रो रहा कि हजरत आप मेरे उस्ताद हैं, ऐसा कैसा हो सकता? नहीं बेटे तुम मुझे माफ कर दो, मेरा हाथ पकड़ के तुम कुछ दुआ पढ़ो। खैर अब इनका इसरार था, वो बच्चा जैसे ही हाथ रखा उस्ताद मोहतरम के हाथ पर, उनका हाथ फिर हरकत करने लगा, पहले की तरह माशाल्लाह सही सालिम हो गया। तो मामूली बात नहीं है, दीनी मदारिस में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। इनकी बरकत से दुनिया का निजाम चल रहा। ये बेचारे छोटे छोटे मासूम बच्चे तहज्जुद में उठ के कुरान पढ़ रहे, देखो माँ बाप को छोड़कर, और आज हर तरफ क्या है, रौनकें, चमक दमक, उससे दूर बस मेहनत करते रहते हैं। कोई उनकी हौसला अफजाई करने वाला नहीं, कोई हिम्मत अफजाई करने वाले नहीं। बेचारे मेहनत कर रहे, दिन रात कुरान पढ़ रहे। ये क्या है? ये कुरान की तालीम अल्लाह की रहमतों को खींचने का मकनातीस है। मकनातीस क्या करता? लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। ये कुरान करीम की तिलावत
कुरान की तालीम जहाँ होती है अल्लाह की रहमतें छम छम बरसती हैं। ये कुरान करीम क्या है? इंसानों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाने वाली किताब है। आज भी इससे हिदायत उबल रही है। अब से 1400 साल पहले, 1450 साल पहले ये जैसे किताब हिदायत थी, आज भी किताब हिदायत है, लेकिन हम इसको पढ़ रहे नहीं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे, इसकी अजमत दिलों में नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि आज भी हमारे पास इस्लाम के खजाने, दो चीजें अनमोल हैं, एक कुरान करीम, दूसरा सीरत तय्यबा। फरमाते हैं कि कुरान करीम से आज भी हिदायत उबल रही है, उभर रही है, जैसे पहले उभरी थी और फैली थी। आज भी हमारे पास, हमारी झोली में कुरान करीम वो दौलत है कि हम मुर्दा कौमों को जिंदा कर सकते हैं। इससे हम कौम मुस्लिम को पस्ती से निकालकर बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। और फरमाते हैं दूसरी चीज वो सीरत तय्यबा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आज भी वो ताकत है कि इससे एक नई उम्मत पैदा की जा सकती है। तो मेरे भाइयों, कदर करें सीरत तय्यबा, घरों में उसकी तालीम होनी चाहिए। हमारे आका की सीरत बचपन से लेकर वफात तक वो हमारे जहन नशीन होनी चाहिए, बच्चों के जहन नशीन होनी चाहिए, उसको पढ़े। वरना बच्चों के जहनों में, नौजवानों के जहनों में, खवातीन लड़कियों के जहनों में क्या है? टेलीविजन के सीरियल्स हैं, मोबाइल के जो है वो, उसके अंदर अहले बातिल ने, नफ्स, शैतान और दज्जाल के एजेंटों ने फिल्में, सीरियल्स, गाने, क्रिकेट मैचेस, फहश वेबसाइट्स, क्या क्या चीजें उन्होंने भर दिया है। मेरे भाइयों, वही चीजें दिलो दिमाग के अंदर बसी हुई हैं। आज घरों के अंदर भी सीरत तय्यबा की तालीम हो, ताकि हमारे बच्चे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को सुने, जहन नशीन करें। घरों के अंदर तिलावत का माहौल होना चाहिए, ताकि हमारे घरों से बेबरकतियों का खातिमा हो जाए, हमारे दिल कुरान करीम की तिलावत से रोशन हो जाए। सबसे ज्यादा नूर कुरान करीम की तिलावत से ही हासिल होने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को समेटता हूं कि देखो, रमजान के आने से पहले पहले अभी से आप एक मामूल बना लें। तबीयत नहीं चल रही तब भी आप रोजाना थोड़ा 1 रुकू 2 रुकू से बढ़ाते बढ़ाते आप जो है 1 पारा तक पहुंचाएं, और रमजान में उससे भी ज्यादा आपको पढ़ना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरब बोलता है, अजम बोलता है, अरब बोलता है, अजम बोलता है, अजम बोलता है, अरब बोलता है, अजम बोलता है, अरब बोलता है, अजम बोलता है, अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, सनम बोलता है, अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, ज़मीनो ज़मा कुल जहां उन पे शैदा, ज़मीनो ज़मा कुल जहां उन पे शैदा, शहीदी की अज़मत हरम बोलता है, हरम बोलता है, अरब बोलता है, अजम बोलता है, शहीदी की अज़मत हरम बोलता है, मैं जन्नत हूँ, जन्नत
میں جنت ہوں جنت مجھے چھو